Hello, dear all. Today we are going to see the process planning. It is the very first unit of our syllabus, that is process planning and tool design. From that, today we will see first what is meant by the process planning, what are the aspects of process engineering, okay, and we will see first what is the process planning. Okay, so already we have discussed many things about process planning. Okay, so first I will just give the introduction about process planning. As we know that whenever we are going for any manufacturing operations, so as if you are starting manufacturing or designing of a new product, so first of all we should we should find the what we can say, the requirement of that product and how we can manufacture it, that product, and for the purpose which type of machines we required, how much manpower will be required for that one, and also we need to see how the process is going smoothly, and we need to plan the process, steps of the process, for by which we can reduce the timing for the manufacturing, as well as we can also see the better visual, what we can call it, better operations. Okay, as we can see that if I'm having two operations on the same plate. Okay, first one is drilling, and next one is what you can say, milling operations. Okay, and then I need to decide which operation should be taken first. Okay, so which one I should take first? So first of all, if I take the milling operation and facing operation first, and then we will go for drilling operation. So what will happen? Because of the drilling operation, the burrs of and chips of the metal that will be there on the corners, okay, on the edges of the hole. So I need to refinish it again. Okay, so better we will take the drilling operation first, and then we will go for the finishing and what we can say, drilling, sorry, milling operation with finishing operations. Okay, so that things we should keep in mind as an engineer, and we should have less material wastage. Okay, so we need to optimize the process. Okay, and plan accordingly. So we know that process planning is also called as manufacturing planning. So then process planning, material processing, process engineering, and machine routing. So we know that manufacturing planning is what? Manufacturing planning means you should see what are the manufacturing operations need to perform for complete completion or complete manufacturing of that part. Okay, how much operations we need to perform for there, and for that how much machines required. Okay, and how much material requirement, how much manpower requirement. Okay, then we need to see what are the resources we required. Okay, machines, material, manpower, and how much money we need to require. So this is not a part of our process planning, but we should consider that also. Then process planning, we are having this all these things. Okay, but how to design the processes or sequence of processes? Here we need to see sequence of processes. Okay, so first process should be taken like this, and second one, third one, and here also we need to optimize the time. In process planning we need to optimize time, because in minimum time we need to have a maximum production. Okay,
That is main aim of every organization, to get the maximum output in minimum time. Okay, so that also we should think about this. And every possible way we should try, we should find for getting maximum profit from these processes. That means uh, also we need to see the quality of operations. ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही लो क्वालिटी का हम लोग सब ऑपरेशंस कर रहे हैं, और उसमें कुछ बहुत सारे एरर्स भी आ रहे हैं, तो भी हम लोग उसको चला रहे, ऐसा नहीं है। क्वालिटी भी मेंटेन करना है, उसके साथ टाइम भी ऑप्टिमाइज करना है, और मैन पावर भी ऑप्टिमाइज करना है। कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पाना चाहिए, इसलिए ऑटोमेशन लगता है तो ऑटोमेशन लगाएंगे हम लोग, या फिर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक ऑपरेशन से होती है तो उसको भी हम लोग लगाएंगे जो मिनिमम कॉस्ट में होगा। और जो जो भी चीज़ है वहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि हमको चाहिए और वो बेनिफिशियल है, हम लोग वहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग में लगा देंगे। मटेरियल प्रोसेसिंग है ना, सबसे पहले क्या है, मटेरियल परचेसिंग भी, अगर हाँ वो परचेस डिपार्टमेंट का रहेगा, तो मटेरियल परचेस करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करके रखना पड़ेगा। किस तरीके से मटेरियल को हैंडल करना, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम देखना पड़ेगा, वो किस तरीके से चलेगी एट अ टाइम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का मैनेजमेंट कैसे होगा। देन प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो भी मतलब ये सभी चीज़ें एक ही है, तो मैं एक एक अलग 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 मॉड्यूल लेके आपको देखना है। और मशीन राउटिंग यानी क्या है, मशीन का रूट किस तरीके से होना, मतलब वो कंपोनेंट का फ्लो किस तरीके से होना चाहिए, एक के बाद एक मशीन्स कैसे अरेंज करना है हमको, तो वो सब चीज़ें इसमें आता है। देन वी कैन सी विच मशीनिंग प्रोसेस एंड पैरामीटर्स आर द बेस्ट आर टू बी यूज्ड। ओके, कौन सी मशीन और कौन से पैरामीटर्स, है ना, मशीन पैरामीटर्स कौन से रहते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो हमारा कंपोनेंट ये साइज का है, तो मशीन के ऊपर वो परफॉर्म हो पाएगा कहीं नहीं हो पाएगा, ये भी हमको देखना है। और उसके साथ ही हमको ये भी देखना है कि इसमें और दूसरा कोई कंपोनेंट आया तो वो भी वहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए। इसी तरीके की मशीन हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और उसके साथ ही वो मशीन के अंदर वो परफॉर्म होने चाहिए, वो कंपोनेंट्स, वो जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म होने चाहिए, है ना। सो दैट टू बी कन्वर्ट ए पीस पार्ट फ्रॉम दिस इनिशियल फॉर्म टू फाइनल फॉर्म प्री डिटरमाइंड। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं कि हमको पहले वो सब चीज़ों का अंदाज़ा लेना है कि इस तरीके से अगर हुआ तो परफॉर्म किस तरीके से होगा, और उसका जो भी फाइनल आउटपुट जो है प्रीडिटरमाइंड है या नहीं है ना। सो जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, तो उसके ऊपर जिस तरीके से दिया है उसका सेम वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए। ओके, यूजुअली बाय द डिज़ाइन इंजीनियर ने जो भी दिया है उसी तरीके का हमको प्रोडक्ट बनाना है। सो द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस द पार्ट। ओके, सो ये भी हमको करना है, इन्वॉल्व है प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोसेस प्लानिंग में, ये डिटेल वर्क इंस्ट्रक्शंस हम लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या क्या वर्क करने वाले हो वो भी डिटेल है, और सीक्वेंस ऑफ वर्क्स भी दिखाना है। और उसके साथ ही हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस भी देना है कि ये काम किस तरीके से होना चाहिए, कितना मतलब एक्यूरेसी के साथ करना है, उसका जो मतलब डायमेंशंस एक्यूरेसी कितनी डेसिमल तक हमको लेना है, और वो किस तरीके से चेक करना है क्या नहीं, सभी चीज़ें हमको यहाँ पे देखना है। हाउ टू रियलाइज ए गिवन प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये भी है ना। गिवन प्रोडक्ट जो डिज़ाइन दिया हुआ है ना, प्रोडक्शन ड्राइंग दिया हुआ है, उसको किस तरीके से हमको क्या बोलते हैं उसको, इमेजिन करके उस प्रोडक्ट को, मतलब यानी जो दिया हुआ है उसको रीड करते आना चाहिए। टू डी ड्राइंग में दिखाया तो उसको मतलब हर एक छोटे 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 जो उसके प्रोसेसेस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है हमको। और वो छोटे छोटे जो भी स्लॉट्स रहेंगे या फिर होल्स रहेंगे छोटे से, मतलब एक ऐसा की होल भी होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ऐसा कोई डिज़ाइन भी है वहाँ पे। तो सभी चीज़ें हमको किस तरीके से परफॉर्म करना है,
वो हमको देखना है, और वो प्रोडक्ट को पहले रियलाइज़ करना पड़ेगा हमको, उसके बाद ही उसको किस तरीके से परफ़ॉर्म करना है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना है हमको समझ में आएगा। ठीक है? सो प्रोडक्ट रियलाइज़ेशन मीन्स व्हाट? This is what the chart we can get the product realization very well. So first one we can see the product design. प्रोडक्ट डिज़ाइन करके आया हुआ है ना? सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन ड्राइंग है, वो डिज़ाइन वगैरह सब कुछ डिज़ाइन इंजीनियर भी कर लिया है ना? वी आर द प्रोसेस प्लानिंग इंजीनियर, ओके? सो वी नीड टू सी हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस into all the execution. Okay, how we can execute this all the product design to the real life product. Okay, so we need to see the product design. Okay, so सबसे पहले क्या है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन को प्रोसेस प्लानिंग में हमको कन्वर्ट करना है ना? हर एक प्रोडक्ट का हर एक कंपोनेंट किस तरीके से हमको परफॉर्म करना है, किस तरीके से हमको वो प्रोडक्ट का जो थिंग्स है ना, उसको देखना है ना? देन ऑपरेशन प्रोग्रामिंग जो भी है, देखिए अभी यहाँ से प्रोसेस प्लानिंग जो है हमको पहले यहाँ पे करना है। तो प्रोसेस प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, प्रोसेस मशीन नॉलेज भी होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि कौन से मशीन वहाँ पे यूज़ करने हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। देन वो मशीन्स को हम लोगों को क्या क्या प्रोग्रामिंग लगने वाली, जैसे सीएनसी मशीनिंग है, या फिर हमको 3D प्रिंटिंग करना है, तो सभी उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लगने वाली है ना? वो प्रोग्रामिंग्स हम लोग पहले से ही वहाँ पे बना के रखेंगे, है ना? मतलब कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन बनाएगा, ये सब चीज़ को आपको प्लानिंग करना करके रखना पड़ेगा, है ना? अगर ये नहीं है, ये नहीं लग रहा है, तो कोई डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ऑपरेशन प्रोग्रामिंग के बाद वेरिफिकेशन आएगा। सो हर एक चीज़ का वेरिफिकेशन होगा कि ये करेक्ट है या नहीं है ना? सो उसके बाद अगर वेरीफाई हो गया एक बार, तो उसके बाद तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे उसको, मतलब टाइम के साथ शेड्यूल करना है। सीक्वेंस तो हो गया, और उसके बाद शेड्यूलिंग भी हो गया, और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आई तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस एंड मशीन नॉलेज, है ना? बराबर है? तो उसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे, और फिर से प्रोसेस प्लानिंग की तरफ जाएंगे, फिर से ऑपरेशन प्रोग्राम सब चीज़ें यहाँ तक आएंगी। अगर शेड्यूलिंग में कुछ प्रॉब्लम हमको दिखा, है ना, शेड्यूलिंग में कुछ प्रॉब्लम दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूलिंग नॉलेज जो भी है हमारे पास, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, मतलब उससे फिर से उसको अपडेट करेंगे, और उसके साथ फिर से मशीनिंग नॉलेज के साथ उसको अपडेट करके फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से अगर एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सब प्रोसेस प्लानिंग शेड्यूलिंग सब भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी एग्जीक्यूशन में आपको प्रॉब्लम आता है। जैसे कि हम बोले कि भाई आइडियली अगर हमको एक नीडल बनाना है, तो नीडल का डायमीटर है 50 माइक्रॉन्स, जो हमको आंखों से दिखेगा भी नहीं। तो उतना साइज का माइक्रोन में जो डायमीटर का ड्रिल हमको बनाना है, उतना छोटा ड्रिल हमको बनाना है, कहीं कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए हमको लग रहा है, तो ड्रिल बनाना है। तो उस ड्रिल में ठीक है, वो हम लोग शेड्यूलिंग किए, सभी सभी चीज़ें किए, लेकिन एग्जीक्यूट करते समय उतना एक्यूरेसी आ ही नहीं रहा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल इन रियल लाइफ। सो उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसका डायमीटर बढ़ाना है, तो फिर से जाएंगे हम लोग यहाँ पे प्रोसेस मशीन नॉलेज। अगर मशीन अवेलेबल नहीं है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए फिर से वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट आर द मॉड्यूल्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग? सबसे पहले डिजाइनिंग, ओके, अदर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। फर्स्ट इज डिज़ाइन, डिज़ाइन के सिवा प्रोसेस प्लानिंग हो ही नहीं सकता। देन मशीन टूल्स, मशीन टूल प्रोक्योरमेंट एंड मशीन टूल आइडेंटिफिकेशंस फॉर गिवन प्रोसेसेस। वो हमारा जो भी प्रोसेस होने वाला है उसको जब प्रोसेसिंग हम लोग करने वाले हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को ये सब चीज़ें मशीन टूल्स हमको
डिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लगने वाला है, कौन सा अवेलेबल है। देन शेड्यूलिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, तो शेड्यूलिंग भी है और प्रोडक्शन कंट्रोल भी है। प्रोडक्शन कितना है, कितना आना आ रहा है और कितना होना चाहिए, इसको कंट्रोल भी करना है। तो these are simple three components, important components of process planning. Okay, so मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले क्या है, तो ओनली 11% ऑफ मशीन टूल्स इन यूएस आर प्रोग्रामेबल, या फिर जो भी है ऑल वर्ल्ड वाइड। then more than 53% of the metal working plants are do not have even one computer controlled machine. ओके, अभी भी मतलब पूरा ऑटोमाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। देन सम प्रॉब्लम्स आर कैन नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट। कभी कभी कुछ कंपोनेंट का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसको जस्टिफाई करना हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर में प्रोडक्शन और सेलिंग मार्केटिंग के सेल्स अगर होगा कि नहीं हमारे को पता नहीं है, तो वो फ्यूचर की बातें होती है, तो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते। then lack of expertise in using such machines, so skilled workers are not available for this one, है ना, न्यू मशीन्स के लिए नहीं होते हैं। then too small a batch size of to offset the planning and programming cost. ओके, तो प्रोग्रामिंग वगैरह उसके लिए हम लोग को जस्टिफाई करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेसिंग बैच और जो भी है मास प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो उसके साथ पोटेंशियल बेनिफिट्स इन रिड्यूसिंग टर्न अराउंड टाइम बाय यूजिंग द प्रोग्रामेबल मशीन्स वी हैव नॉट बीन रियलाइज ड्यू टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। सभी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से हम लोगों को वो सब चीज़ें हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते। देन वन ऑफ ए काइंड एंड स्मॉल बैच, ये और मास प्रोडक्शन, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट इज स्मॉल बैच एंड मास प्रोडक्शन। लीड टाइम एंड कॉस्ट, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल बैच में मतलब बैच अगर ख़त्म हो रहा है और दूसरा बैच चालू हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन बैच प्रोडक्शन में हम लोग उस तरीके की बातें करते हैं। तो वो बैच के बेस में लीड टाइम कितना है, मतलब एक बैच ख़त्म होगा दूसरा स्टार्ट होने में, मतलब टूल चेंज ये सब चीज़ें उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। प्रोसेस सिलेक्शन, यूज़ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, है ना, उसको हम लोग ये जो इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। देन मास प्रोडक्शन में कॉस्ट है प्रॉब्लम। देन अप्रोच हाउ वी कैन अप्रोच दिस वन, प्रोसेस डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन, जो भी कॉस्ट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, और उसके साथ मटेरियल सिलेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और फैसिलिटीज़ एंड डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो we will have 1 or 2 minute lecture, then we will stop. Okay, so ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। सो हाउ कैन वी मेक इट, हाउ डू वी प्रोसेस इंजीनियर। ओके, सो किस तरीके से हम लोग प्रोसेस इंजीनियर बनेंगे, हाउ कैन वी मेक इट, इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका भी आंसर हमारे पास होना चाहिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू कंप्लीट इट, दैट इज प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेशन। इन हाउ रिलायबल विल इट बी, एंड हाउ कैन वी रिसाइकल इट। ये जो आपको 5 क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आपके पास होने चाहिए, देन वी कैन बिकम अ प्रोसेस इंजीनियर। ओके, सो मतलब सभी चीज़ है कि कोई भी पार्ट हमको बनाना है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हमारे पास इसके आंसर्स होने चाहिए। तो इसके साथ ही हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोसेस प्लानिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। पहले प्रोसेस प्लानिंग होगा, उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग होगा। तो बाकी की चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।